Good morning, students. Today we will start our new lesson, that is how do organism reproduce. As all of you know that all the living beings need energy to do different type of work, and there are so many processes occur in our body, right? तो what does it means कौन कौन सी प्रोसेसेस, जैसे सिंपली कॉमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा. थोड़ी सी लिखाते हैं. ऑल आर नेसेसरी फॉर survival, but reproduction is not needed for survival of individual, right? It is not necessary for the survival of an individual. So why reproduction is necessary? Why reproduction is necessary? To give that, before that we should know about the reproduction. What do you mean by reproduction? It is the process of producing young ones of its own kind. अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है. अब वाई इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी इफ इट इज नॉट needed or necessary for the survival of the individual. So we can say that if no reproduction occurs in individual, then no new generation will come, and this species will extinct after some time. तो अब पता चला why reproduction is necessary. So for existence of, simply we can say that for the existence of population or species, reproduction is necessary. Reproduction is necessary even as a lot of energy is consumed in this process. Understand? So now what you understand about the reproduction is why reproduction is necessary for the process. Reproduction process क्यों necessary? For the existence of the living beings on the earth, the reproduction is necessary. अब next topic is that is about just introduction कि why there is need of the reproduction. Do organisms create exact copies of themselves? Yes, do organisms create exact copies of themselves? As all of you know that organisms look similar. जैसे हम अपने मम्मी पापा से मिलते हैं. क्यों? Because body design is similar. अब हमारा बॉडी डिजाइन सिमिलर है. अब बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो ब्लूप्रिंट्स विल आल्सो बी सिमिलर, शुड बी सिमिलर. क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है तो ब्लूप्रिंट में रिप्रोडक्शन इज द बेस. रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट basic level
involves making copies of blueprint, right? So copies of blueprint means DNA copying, or we can say that DNA is present in your chromosomes or help in, simply we can say like this, help in transfer of character from parents to offspring, right? अब जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये करेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो व्हाट विल हैपन? तो ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, सिंपली वी कैन से दैट ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग देयर विल बी एग्जैक्ट कॉपी इज नॉट फॉर्म्ड. आपकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है. वाई द एग्जैक्ट कॉपी इज नॉट फॉर्म्ड? Due to some environmental changes, right? तो वहाँ पे कुछ आपके environmental changes भी हो सकते हैं, और even some other chemical reactions in body during copying. Right? So different protein will be formed. तो उससे क्या होगा, आपका डिफरेंट प्रोटीन बनेगा. इफ डिफरेंट प्रोटीन विल बी फॉर्म, तो डीएनए स्ट्रक्चर हैज सम वेरिएशंस, राइट? अब जब डीएनए कॉपिंग होती है, डीएनए कॉपिंग, तो दिस कॉपिंग शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिप्रोडक्टिव सेल, और वी कैन से दैट सेल अपरेटस, राइट? सेल अपरेटर. अब जैसे ही ये एक जो कॉपी है इसको पुश कर दिया, it will not work. It will not work without cell apparatus. So जो DNA copying है is also accompanied by creation of individual सेलुलर अपरेटस. अब जब सबका अपना सेलुलर अपरेटस होगा, सो सेल है दैट विल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. तो ये क्या करेगा, इनटू टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा. और हर डिवाइड सेल के पास अपना सेलुलर अपरेटस होगा, और उसकी डीएनए कॉपिंग के बाद आपके दो इंडिविजुअल बनेंगे. अब जब दो कॉपीज आपकी बन गई, ठीक है, टू सेल्स बन गए, यानी टू सेल्स. अब ये जो दो सेल बने लुक सिमिलर but not exact copy. बट लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे, देयर विल बी सम वेरिएशंस. वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होंगे, उसके वेरिएशन होंगे, एंड दिस वेरिएशन विल लीड टू दिस वेरिएशन, जो डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशन आई है, that will transfer to next generation. ये क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एंड वी कैन से दैट देयर आर वेरी स्मॉल और subtly changes in the copying.
this may also leads to evolution, means a new species can be formed. एक न्यू स्पीशीज आपकी बन सकती है ड्यू टू द वेरिएशन. ओके, अब हम वेरिएशन पढ़े तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. एज आई टोल्ड यू, ड्यूरिंग DNA कॉपिंग some changes in protein formation takes place. प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं विच लीड्स टू वेरिएशन इन स्पीशीज. अब मैं कहूँ मेरा जो DNA है मेरे पेरेंट्स से with my parents not exact same but similar, right? तो मेरा सेम नहीं होगा लेकिन सिमिलर काफ़ी हद तक होगा, अराउंड 95 to 97%. तो ये जो 3% की आई है, क्या ये वेरिएशन आई है, ये अगली जनरेशन में और ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगी, फिर उससे ज़्यादा और वेरिएशन हो जाएगी. तो what is the importance of these variation? There are the two main importance of this variation. One, we will say that chances of survival of species क्या जाता है, increases, right? Secondly, we can say that variation leads to इवोल्यूशन. जैसे मैंने पहले कहा चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं. मान लो ये मेरा एक पॉन्ड है, कोई भी पॉन्ड से आपका, उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, लाइक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट हेयर, एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दिस बैक्टीरिया विल डाई ड्यू टू drastic change in niches or environment, right? उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ, ये बैक्टीरिया डाई हो गए. बट दोज who survive have some variation than the एक्सटिंक्ट स्पीशीज, राइट? तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, और ऐसे एक न्यू स्पीशीज भी जनरेट हो सकती है, और वेरिएशन चांसेस ऑफ सर्वाइवल को आपके क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देती है. तो वी कैन से दैट देयर आर द टू इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस आर देयर. वन इज नोन एज योर इट लीड्स टू योर इवोल्यूशन, सेकेंड इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल आर देयर. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द इकोलॉजिकल नीचे. व्हाट इज इकोलॉजिकल नीचे? Position of a species in ecosystem. All of you know that about the ecosystem there are two type of the biotic and abiotic component which will comprises to form a system, and that is known as your ecological system. और ये तो ecological नीचे सिंपली हम नीचे कहें व्हाट इज दैट कि इसमें एक ड्रास्टिक चेंज होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, पूरी की पूरी स्पीशीज क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. द मैच ऑफ ए स्पीशीज to a specific environmental conditions, right? This is about your importance of variation, why sexual reproduction is there, reproduction is important, or we can say that ki how the DNA copying is there. We have discussed that. Now we will start about the types of the reproduction.